Now, before starting this definition, I want to recall you about the last chapter we have done of demand, where we have not talking about the degree of change. Okay, we have already talked about increase or decrease in demand, or extension or contraction in demand. Okay, and the shift and rotation of demand, but we have not talking about degree or the measurement got changed in QD in the previous chapter. But here we are talking about how we can measure that what is the degree got changed in demand, in quantity demanded. So that's why this definition arrive. The price elasticity of demand, which is also known as elasticity of demand, defining itself as it is a measurement or the degree of responsiveness of QD, how much it gets changed due to change in price of a commodity. Okay, so this is the definition. Now it is of three types, but in our syllabus we have to talk about only price elasticity of demand, and here we have the first method, that is percentage change method, or you can call it flux method, for calculating price elasticity of demand. Okay, so what is the formula? Elasticity of demand also gets denoted by ED, and this formula says percentage change in QD upon percentage change in price. Just that only. Okay, in your books there is a sign of negative in the formula, but we are not talking about mathematically. There is no significance of it. Why we have put that negative sign is just because of the inverse relationship between the price and the demand. Okay, so let's, before moving on to the questions and the answer, we'll talk about the distinct situations of elasticity of demand, that how we can say particular thing is perfectly elastic or inelastic. Okay, so begin with the first one, that is horizontal straight line demand curve and elasticity of demand, which is also known as perfectly elastic demand. Now think of a situation when even a slightest rise in price leads to zero demand for the commodity. I mean by saying this, जरा सा भी अगर प्राइस बढ़ जाता है किसी प्रोडक्ट का, तो आप उसकी डिमांड बिल्कुल जीरो कर देते हैं, आप उसको नहीं खरीदते. ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? It shows that if price is slightly increased, then demand falls to zero. So what happened? क्या इसका कोई क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क पड़ा ना, एकदम से जीरो कर दिया आपने. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनाइट. तो आपकी डिमांड जो है वो कैसी होगी? इन्फिनाइट होगी, कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है. अब इस सिचुएशन में क्या है कि प्राइस 4 का 4 ही था, बढ़ा नहीं, और डिमांड जो है वो आपकी बढ़ गई, 10 to 20 हो गई. सो व्हेन यू अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ PED, आपको ध्यान क्या रखना है? प्राइस सेम रहेगा, फर्स्ट क्वांटिटी सेम रहेगी, मगर जब चेंज इन क्यू आएगा, कितनी क्वांटिटी चेंज हुई? 10 से चेंज हुई, एंड प्राइस कितना चेंज हुआ? 0. प्राइस चेंज नहीं हुआ. तो क्या निकल के आया? आपने देखा कि इन्फिनाइट रिलेशनशिप निकल के आ गया. इफ द रिलेशनशिप इज इन्फिनाइट, देन यू हैव टू से इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ओके, I hope I'm clear to you. Now, second, that is perfectly inelastic demand. इसमें क्या बताना है कि ये एक तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन भी होता है, दूसरा आप बोलेंगे जब आपका ED 0 हो जाए. अच्छा, दोनों में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये बनेंगे कैसे. यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ में कि प्राइस कांस्टेंट था, तो प्राइस हमने एकदम स्ट्रेट ड्रॉ किया है. क्वांटिटी चेंज हो गई थी, बढ़ गई थी, तो हमने Q से Q1 कर दिया. बट इन सेकेंड सिचुएशन व्हाट हैपेंस,
इस सिचुएशन में क्या हुआ है, सेकंड सिचुएशन में जो प्राइस था आपका वो पहले 2 था और अभी वो 4 हो गया, बट डिमांड रिमेन्स द सेम। तो हमने Q को सेम बनाया, यानी QD को हमने सेम कांस्टेंट रखा, और प्राइस क्योंकि ऊपर की तरफ बढ़ रहा था 2 से 4 हो गया, तो वो हमने ऊपर की तरफ शो कर दिया। क्या सिर्फ इतना ही है इसमें? तो मैं आपको बताऊं, it is a situation when change in price causes no change in the quantity demanded. प्राइस के चेंज होने पर भी आपकी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा कब हो सकता है? इन इलास्टिक एक बहुत फेमस सा आपका क्वेश्चन है, वो है कि why is demand for water in elastic? पानी के दाम अगर बढ़ भी जाएं तो भी आपकी क्वांटिटी चेंज नहीं होती। Why? Because it is an essential of life. इसके बिना हम नहीं रह सकते, तो इसीलिए जो हमारी डिमांड है वो इनइलास्टिक रहेगी इसमें। ठीक है, ओके। तो ऐसी जो भी चीजें होंगी, जो भी आपकी कैटेगराइज में चीजें आएंगी कि आप कैसे इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। Now the third situation, that is of rectangular hyperbola demand curve and elasticity of demand. ये क्या है? What is all about? It is a curve under which all rectangular areas are equal. Okay, so you need to note that rectangular area under demand curve shows total expenditure, कितना आप खर्च कर रहे हैं on the commodity। तो आप इसमें क्या करेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, P into Q। Okay, thus when the demand curve is rectangular hyperbola, total expenditure on the commodity remains constant। तो जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो आपने कॉमोडिटी पे खर्च किया वो कांस्टेंट बना रहेगा, नो मैटर प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस आपकी जो है वो चेंज होते हैं या नहीं होते, बढ़ते हैं या घटते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ED आपका क्या होता है? 1। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में होता है 1। आप ये खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जहाँ पे प्राइस पहले 10 था 5 हो गया और डिमांड आपकी 20 से 30 हुई थी। ठीक है, कितना आपने टोटल एक्सपेंडिचर किया है अपने प्राइस एंड क्वांटिटी पे। ठीक है, तो इस केस में दोनों ही चीजें चेंज होंगी। Okay, now the last is factors affecting price elasticity of demand. I will discuss about this also. Number 1, like nature of commodity. मैंने आपको एक लाइव क्लास की एक पिक दी थी जिसमें मैंने आपको एक स्टोरी से समझाया था कि आप कैसे इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि मिस इलास्टिसिटी है, वो सबसे पहले कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसका नेचर देखती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए नेसेसिटी गुड्स होते हैं, जैसे कि सॉल्ट है या वेजिटेबल्स हैं, ये हमको चाहिए ही चाहिए। तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं दैट आर द नेसेसिटीज, उनकी डिमांड इनइलास्टिक रहती है। वेयर एज लग्जरीज जो होती हैं जैसे कि एयर कंडीशनर, कॉस्टली फर्नीचर, तो इनकी डिमांड हमेशा इलास्टिक रहती है। ठीक है, वेयर एज जहाँ हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जैसे कि ब्रेड एंड बटर, पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, ऐसी चीज़ों की जो भी डिमांड रहती है वो मॉडरेट इलास्टिक रहती है। ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज को। सेकेंड है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। अगर उसका कोई बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट हमारे पास है, जैसे कि टी का कॉफी हमारे पास मिल जाता है, तो ऐसी चीजों की डिमांड आप सोचिए कैसी होगी, इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक होगी। क्योंकि when price of such a good rise, then consumer always have the option of shifting to its substitutes। हम फटाफट शिफ्ट कर लेते हैं और दूसरी चीज को ले लेते हैं। ओके, सो जैसे ऐसे गुड्स होते हैं जिनके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ना हो, जैसे सिगरेट या जो बीड़ी वगैरह होते हैं, इनके कुछ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं इतने, इनके बिना आप क्या करेंगे। लिक्विड है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है उसका, तो ऐसी चीज़ों की जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होगी। नाउ नंबर ऑफ यूजेस, क्योंकि कई गुड्स ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं, जिसमें से बहुत फेमस है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग, रूम हीटिंग, कुकिंग,
बाकी सब चीज़ों में भी काम आती है। तो एक चीज़ के मल्टीपल यूजेस जब होते हैं तो ऐसी चीज़ों की जो हमारी डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है। नाउ कई बार ऐसा होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो हम खर्च करने जाते हैं वो कई बार हम पोस्टपोन भी कर देते हैं, यानी अभी ना लेके सोचते हैं बाद में ले लेंगे। सो डिमांड विल बी इलास्टिक फॉर गुड्स द कंजप्शन ऑफ विच कैन बी पोस्टपोन्ड। उन गुड्स की डिमांड इलास्टिक रहेगी जिनको हम पोस्टपोन कर रहे थे और सोच रहे थे कि बाद में ले लेंगे। जैसे कि डिमांड फॉर रेजिडेंशियल हाउसेज मे बी an example of this, because people who are having the demand for residential houses when not able to purchase, that means when maybe when the interest rates of the banks will go higher, then people may not purchase it, so we are postponing it. Okay, the next is income level. Level of income of the consumer. Now elasticity of a demand for a good also depends on the level of income, right? So if the buyer of a good are high end consumers, that means who are earning very much or at a very high level, they will not care for the price at all, right? Accordingly, elasticity of demand is expected to be low. तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जो आपकी डिमांड है वो लो हो जाएगी। लाइक डिमांड फॉर लग्जरी कार्स जो हमारे बिलियनियर्स हैं वो करते हैं, ये हो सकता है किसका एग्जाम्पल। ऑन द अदर हैंड आप ले सकते हैं अगर इनकम लेवल ऑफ द बायर इज लो, अगर वो कम है तो क्या होगा इस केस में, elasticity of demand is expected to be high, तो ज़्यादा हो जाएगी, because demand for small cars by the middle class people in India is going to rise, जैसे आप देख सकते हैं नैनो के टाइम पे हुआ था। Now habit, अब हम कुछ गुड्स के बहुत हैबिचुअल होते हैं जिनके बिना हमें और कुछ चीज़ नहीं चाहिए होती है, हम उसके बहुत एडिक्टेड होते हैं। अब ये उनके केस में आप ले सकते हैं जो लोग बहुत एल्कोहलिक होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी सब्स्टिट्यूट ऑल्सो, सो व्हाट दे विल डू, तो जो हैबिचुअल हमारे गुड्स होते हैं उनकी जो हमारी डिमांड होती है वो बेसिकली हमारी बहुत इनइलास्टिक होती है। जैसे मैंने लाइव क्लास में एग्जांपल दिया था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ टैक्सिंग जो है जो उन्होंने सिगरेट्स की थी वो उन्होंने हायर कर दी थी कि अब हाईली टैक्स हो जाएंगी सिगरेट्स। तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या वो लोग पीना छोड़ देंगे? नहीं, वो लोग और ज़्यादा क्या करेंगे, अपने पास स्टॉक करना शुरू कर देंगे, ब्लैक मार्केटिंग करनी शुरू कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इज टाइम पीरियड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डिमांड इज इनइलास्टिक होगी हमारी कब, अगर हम शॉर्ट पीरियड के लिए कोई गुड खरीदते हैं, और इलास्टिक कब हो जाएगी, जब हम कोई लॉन्ग पीरियड के लिए खरीदते हैं, बिकॉज लॉन्ग पीरियड इज लॉन्ग इनफ फॉर अ कंज्यूमर टू चेंज हिज कंजप्शन हैबिट्स ऑल्सो। लंबा समय में क्या हो सकता है, हम अपनी कंजप्शन हैबिट्स को हो सकता है हम चेंज कर दें, आज जो भी ले रहे हैं वो बाद में ना लें। So, goods with multiple uses or carrying a high price tag and having a large number of close substitutes always tend to show higher elasticity of demand than the goods which are low priced and are essentials of life and do not have any close substitutes. Okay, I hope I'm able to make you understand.